वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। We are going to start our function now. I would like to request Dr. Gautam Goswami, Professor, Head of the Department of Radiology, Guwahati Medical College, to act as the master of the function. Please. सभी को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। So it's a big responsibility that has been reposed on me by none other than my teacher, Professor Sarkar sir. So this is one responsibility that I can't shrug off, and I had to accept it because it becomes an order whenever he makes a request. So without wasting any time, we really will start with the function. And the first thing that I would like to invite to preside over the today's valedictory function of this Dhanavantri Jatra. Nice words. As he mentioned, I worked in medical college and I had the privilege of meeting him as a student, as also a colleague. Dr. Sarkar, it was Dr. Sarkar who introduced me to this organization, and he is also my friend and also was a colleague in the medical college. So I am really privileged to preside over this August gathering and this meeting. Special guest, Dr. Satish Midha is a consultant laparoscopic gastrointestinal surgeon in Ranchi, Jharkhand. Also, the National General Secretary of National Medicos Organization. Next is Dr. Chandrabhanu Tripathi, Professor and HOD Pharmacology, Government Medical College, Bhavnagar, Gujarat. He is the National Organizing Secretary of National Medicos Organization. Our proud privilege is we are having a special invitee, Sri P.P. Srivastava. He is an IAS officer. He is a veteran IAS officer of Government of India. At present, he is a member of National Northeastern Council. With this, I would like to conclude here with the introduction chapter, and this will be followed by reception of the dignitaries. So, do we start with? I would like to name from the President. To felicitate our special speaker, chief speaker, Sri Jayaprakash. Chaudhary, to felicitate people, P.P. Srivastava.
felicitate Dr. C.V. Tripathi. Now I would like to request Sri Rajiv Gupta to felicitate Dr. G.K. Sarma. Dr. Gautam Goswami. आगे आओ अच्छे से लो पहले बनाओ फोटो बाद में पहले बनाने दो सामने देखो सामने एनोमस की पुलिस का पदाधिकारियों और मेरे मित्रों, सामने में बैठे हुए मेरा बंधुगण, भारतवर्ष की ऊर्जा शक्ति, लेडीज, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग को सामने में देखते हुए मैं प्रोटोकॉल से थोड़ा बाहर 2-4 शब्द बोलना चाहते हूँ, मुझे क्षमा करें। एक रीडबैक का एक छोटा सा पंक्ति, 1-2 शायद कहीं भूल हो सकते हैं। और आज करीब 30 साल पहले गुरु जी का एक घटना जो मुझे किसी ने बताया था। रीडबैक में बैठा बोले हुए है, संग गच्छधावम समामि वदाभम समामि मनसदानतम समानि शमना हृदय समानि अभूत चित्त हृदयम तद्भु सोभ शांति सोभ शांति सोभ शांति। उसका तात्पर्य है, meet together, talk together, let our mind comprehend alike, common be your thought and action, common be your knowledge and achievement, so that there is peace amongst you. उसमें शांति आपस में बांटने के लिए धर्मकर और सेवा इंटरनेशनल, ये लोग प्रसार विमुख है, मगर ये लोग नहीं होने से आज जो मुकाम में हम पहुंचे ये कभी नहीं होता। तो मैं उन लोग को भी सशस्त्र प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा किशोरदा का गाना का मुक्ता सुनाता हूं। मैं लेके चलो एक ऐसी गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करे। सूरज की पहले किरण ने आशा का संदेशा लाया, घनघोर अंधेरा घटाया, आज चल के तुझे में लेके चलो एक ऐसी गगन की तरह। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस तरह से चल के एक सपनों के भारत बनाइए, ठीक ऐसा भारत जो किशोरदा ने इस गाने में बोल के दिया है। तो मैं भारत माता को नमन करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। Is none other than Dr. Harsh Bhattacharya. He is the medical director and the trustee of Sri Shankar Deva Nethralaya. I call you to come onto the side. I request the organizing committee to felicitate him and to complete the formality. Thank you. Now I think the most important item of the whole program, I have seen the agenda, is the introduction and felicitation of the participant medicals. As you know, these doctors and other medical staff have been going round all over the north. I request Dr. Pranjal Parale, Secretary Reception Committee, to felicitate them. The moment that we are waiting the reception committee and the Seva Bharati Purvanchal, National Medicals Organization and Seva International. In relation with Swami Vivekananda's 150th birthday, last year, the time of Dhanvantari Yatra, we have decided that in relation
we've done 150 years. We should go to the village, the remotest area of the northeastern region, with at least minimum 150 doctors and medicals. And I am today very much glad to announce you that we have crossed that limit and total medicals crossed more than 170. Now I am going to request state-wise the team leaders and the members of that medical team to come over in front of the dais, and I will request our respected guests to felicitate them. First of all, Mizoram. You know the Mizoram, too far from Assam. Still, with the help of these local people, BSF and our Karyakarta, under the leadership of CB Tripathi sir, we take Dr. Amal S. Ayawale, Dr. Charan Tatu, Dr. Vaidehi Tatu, Dr. Arpreet Vallabhbhai Bachchani, Nidhi Kanubhai Patel, Priti Dawali Rajesh Bhai, हिराल महेश भाई, दिनेश भाई, बल्लादानिया आशा, राघव भाई, कि आप लोग धीरे धीरे आगे आ जाइए क्योंकि एक टीम होके हम आप लोग को फेलिसिटेट करने जा रहे हो. प्लीज कम. रिया, हितेश भाई पटेल, मुना जिंदल, सब लोग आ जाओ आगे. प्रीति, सब आ जाओ. और द मिजोरम टीम्स, राठौर नरेश, राठौर भाई, please come forward. Rajvi Shah, I am third year MBBS student of Government Medical College भावनगर. धन्वंतरी सेवा यात्रा, यहाँ पर आने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव जो है उसके बारे में मुझे एक हिंदी पंक्ति याद रह रही है. बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं. 3 दिन में हम कोई क्रोनिक डिसऑर्डर्स को बीट नहीं कर सकते, पर एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि इंटरैक्शन. मेघालय जो जिसमें इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, उस सिटी में जाने का मुझे मौका मिला. मैं अपने आप को बहुत नसीबदार समझ रही हूँ. वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी की दाद देनी पड़ेगी. वो लोग हमें भगवान की तरह ट्रीट कर रहे थे. मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तरफ वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का मौसम, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, और एक तरफ वहाँ की एक चीज जो मुझे खटक रही थी वो है बिटर नट्स. वहाँ पर किसी का मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो खाली है. 24 घंटे वो लोग बिटर नट्स खा रहे थे. और very well. When a student you have come, God will bless you. You will become a very good doctor. भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आके यहाँ किया है, और सभी सभी लोगों को मेरा धन्यवाद. महोदय, श्रद्धा सज्जनता और विनम्रता के प्रति मूर्ति माननीय सीबी त्रिपाठी सर, गांधी की साधना और विनोबा की भावना को अपने में समाहित किए नाम लेकर और मेरे प्यारे साथियों, मैं पटना मेडिकल कॉलेज के सभी साथियों की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अखंड भारत को नजदीक से जानने का अवसर प्रदान किया. इन राज्यों को हम बस भारत की परिस्थिति पर देखते थे, आज उनकी कला संस्कृति साथ ही साथ उनकी समस्याओं को जानने एवं निराकरण का अवसर मिला. इस
इसके लिए मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आभारी हूँ और इस बात के लिए नतमस्तक हूँ ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि मेरे हिस्से का कर्ज वो उतारा करते थे, आज मैं खुद इस बात के लिए तैयार हूँ। हम आए हैं इस देश में सेवा के लिए, हमने अपने प्रोफेशन को चूज किया है समाज की सेवा के लिए। मैं जिस क्षेत्र में गया था धेमाजी, काफी गरीबी है, लोगों की आवश्यकताएं जो है बहुत ही कम है, बट अपनी उस साधन की सीमितता में भी उनमें कुछ करने की क्षमता है। उन्होंने जिस आदर भाव के साथ हमसे मिला, जो उनके पास था उन्होंने हमें दिया, वो उस चीज को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मुझे वो पंक्ति याद है जब मैं 7th-8th क्लास में पढ़ा था नवोदय विद्यालय में कि झुंड में चलना और चलना भेड़ और बकरियों का काम है, शेर तो जंगल में अकेला होने पर भी मग्न रहता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसका हमें एक और पंक्ति मुझे याद आती है कि महलों में सोने वाले लोगों को क्या जाने की चांदनी रात क्या होती है। सोने वाले लोगों को क्या जाने की चांदनी रात क्या होती है। चांदनी रात तो होती है जो खुले आसमान के नीचे में सोते हैं और सपने देखते हैं उन तारों के बीच में। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बैनर तले आज मुझे असम में आने का मौका मिला, नहीं तो एक फर्स्ट ईयर JR1 जनरल सर्जरी MS शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता, और मैं आया, इसका भरपूर लुत्फ उठाया। आप सबका मैं सदा आभार रहूंगा और आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। लोकल कार्यकर्ता रामकृष्ण जी, रूपाली देवी, उन लोगों की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद मुझे ये लगता है कि मुझे तो पेमेंट पर भी अगर कहा जाता तो मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता, और शायद अब उन्हें देखकर मैं भी कर सकूं और ये समझ सकूं कि आदमी का कर्तव्य क्या होता है। मैंने ये देखा, उन्हें तो क्या पेमेंट के नाम पे क्या मिलती होगी मुझे पता नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल तो बहुत सिंपल थी, लेकिन वो काम करने में कभी किसी भी समय नहीं चूकते थे। बस फोन आया, यहाँ ये करना है, ठीक है, एक बार भी कोई सवाल नहीं, एक बार भी ये नहीं कि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, अभी तुरंत तो रूम पहुँचा हूँ, कुछ नहीं। शायद मुझे लगता है मैं शायद ऐसा कर पाता पहले या नहीं, लेकिन अब तो एक बार जरूर कोशिश करूंगा, ये लगेगा कि ये संभव है। मैं सिद्धांत त्रिवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर। मैं यहाँ आया था सोच के कि मैं यहाँ लोगों का दर्द दूर करूंगा, सेवा करूंगा, और मुझे किस किस परिस्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं वहाँ गया, मैं तो गद हो गया। उन्होंने, वो लोग ये जानकर खुश हो गए कि हम वहाँ इतने दूर से उन लोगों की सेवा करने आए हैं। हम सब गए थे नागालैंड, हमारी एक ही टीम थी जो गई थी नागालैंड। नागालैंड में हम लोगों ने 5 कैंप किए और तकरीबन 1000 जितने पेशेंट हम लोगों ने चेक किए थे। वो 5 कैंप हम लोगों ने 5 अलग-अलग गांव में किए, और एक बात बोलना चाहती हूँ, वो 5 कैंप भी भाषा, कल्चर, रहनी कहनी सब पूरा डिफरेंट था। हम बोलते हैं कि भारत में विविधता है, नागालैंड से आने के बाद मैं बोलूंगी नागालैंड के हर एक गांव में अलग-अलग तरह की विविधता है, हर एक गांव अपने आप में एक है। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपने टीम लीडर डॉक्टर कौशल शेख का, जिन्होंने एक टीम वर्क हम कैसे करते हैं, टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। किसी भी पेशेंट को सही करना हो या अपना कोई काम अच्छा करना हो, टीम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंत में कच्छ हो या कोहिमा, भारत भूमि अपनी मां। कच्छ हो या कोहिमा, भारत भूमि अपनी मां। विदेश में जाकर दूसरों की सेवा करना है, बल्कि अपनी ही देश में इतनी गरीबी है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो? तो बोला कि मैं बहुत कमाऊंगा, शादी करूंगा, 10 तरह की चीजें करूंगा। तो उसने कहा कि ये काम तो जानवर भी करते हैं, तो तुम्हें और जानवर में क्या अंतर हुआ? तो इशारे से बात कर रहा हूँ, मैंने इस लैंग्वेज का भी कि इशारा से कैसे समझा जा सकता है, कैसे बात किया जा सकता है, इसका भी मैंने बहुत के दवाइयों को उपलब्ध कराया जा सकता है। पर यहाँ पर भी लोगों ने बहुत सारी दवाइयों का उपलब्ध करा था, इसके लिए भले आवश्यकता के अनुसार उतना नहीं भी हुआ, पर दवाइयाँ बहुत ज्यादा थी हम लोग के पास में। तो उससे हम नहीं कह सकते कि हम लोग के पास दवाइयाँ की कोई कमी थी, पर फिर भी थोड़ा और होने से हम लोग और भी अच्छे से लोगों को बांट सकते थे, अच्छे से दे सकते थे। सबसे जो बड़ी बात है कि गाँव को लोगों का प्रेम जैसे उनमें
या जैसे भी प्रकट करें, लोगों का प्रेम हम लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था। और जितने भी यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी में है, खास करके डॉक्टर शर्मा और उनकी मिसेस, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उनके घर में रह करके मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बाहर में रह रही हूँ। उनका इतना प्यार मिला है, इतना उन लोगों ने मुझको आतिथ्य दिया है, मैं सचमुच में तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप लोग मैं सबों का यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी अगर मैं आ सकूँगी तो इस यात्रा के लिए जरूर आऊँगी। धन्यवाद। गोविंद बाबा जी आए हैं मणिपुर से, तो उसको स्वागत करते हैं हमारे तरफ से, सेवा भारती पूर्वांचल के आज के तरफ से श्री कमल पाल, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको आग्रह करता हूँ कि गोविंद बाबा को एक हमारा गुलाम गामूसा दे के स्वागत करें। धन्यवाद। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1977 को काशी की पवित्र भूमि में हुई थी, जब देश के विभिन्न भागों से आए हुए मेडिकल छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य सेवा और राष्ट्र सेवा मानते हुए एक संगठन ही नहीं बल्कि एक आंदोलन की नींव रखी थी। और यह आंदोलन आज देश के विभिन्न भागों में फैला है, और इसकी एक झलक धन्वंतरी सेवा यात्रा के रूप में भी मिली है। एनएमओ ने अपने सिद्धांतों में जो अपनाया है, उसके चलते पूरे देश में मेडिकल छात्र छात्राओं एवं चिकित्सकों के सोच में भारतीयता कैसे आए, कैसे हम इस देश की मिट्टी से जुड़े और स्वास्थ्य के माध्यम से इस देश को परम वैभव की तरफ ले जा सके, यही एक प्रयास है। जो कि हम यहाँ एनएमओ परिवार यहाँ पर बैठे, जैसे कि हम हमारे डिपार्टमेंट में जो जर्नल हमारी शक्ति है फार्माकोलॉजी की, उसमें ही हम लोगों ने स्वस्तिक डाल करके रखा है, और उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आज ये बड़ी खुशी का विषय है कि धन्वंतरी सेवा यात्रा में अपन ने जो टारगेट, जो भी टीम बैठक हुई थी, राष्ट्रीय टीम बैठी थी, उसमें यह हुआ था कि 150 डॉक्टर्स और विद्यार्थी आना चाहिए। बड़ी खुशी का विषय है कि 170 जने आए हैं, 171 जने आए हैं, और इसमें सभी विद्यार्थियों का, उसमें नर्सिंग के भी हैं, मेडिकल के भी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, डेंटल के भी हैं, और सीनियर डॉक्टर्स का भी विशेष सहयोग रहा है। काफी हमें ऐसा लगा कि क्यों मतलब वो आई हैं, पर जब उनसे कुछ जो बात हुई तो उन्हें लगा कि उनमें भी कहीं एक चिंगारी धधक रही है, उसको प्रज्वलित करने की जरूरत है। जब हम लोग बरवा की तरफ बढ़ रहे थे, उनको राइनोरिया हो रहा था, मोन्टेलिपास की जरूरत थी, क्योंकि वो मोन्टेलिपास लेती नहीं और उनसे ही उसको फर्क पड़ता था। सिमेटिडिन उनको इफेक्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने ली, और वहां पर भी जाकर के बर्मा में भी कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ा, पर उस परिस्थिति में भी उन्होंने काम किया। ये बात देखने अपने को समझने की, ये भावना जो मेरे साथ में विद्यार्थी थे, मैं उनको कह रहा हूँ, शायद अन्य टीम मेंबर्स को भी इस तरह की बातें अनुभव हुई होंगी। सबके लिए है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी थी। अंदर से तो भारतीय ही है। जैसे मेरे से कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क्स खड़ा होता है, मैं कहाँ से बताऊं, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ किया, मेरे पेरेंट्स कहाँ से, मतलब उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, मेरे चाचा कहाँ के हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कहाँ का हूँ मुझे पता नहीं है, परंतु एक बात पता है कि मैं भारत का हूँ। यस, सो भारत माता की जय। यहाँ के लोग प्रकृति के बिल्कुल गोद में पैदा होते हैं, प्रकृति की गोद में ही बड़े होते हैं, इसलिए उनमें दूसरे को जज करने की बड़ी अच्छी पावर है। अगर वो जानते थे कि चाइनीज की क्या नियत है, और वो ये भी जानते थे कि भारतीय की क्या नियत है, इसलिए वो हमेशा भारत के साथ रहे। और यही आपके आने से ये एक बड़ा भारी चीज हो रही है
कि वो समझते हैं, वो आपको समझ गए जाते हैं कि जब आप इतनी दूर से सब कुछ अपने चल करके बिना कोई पैसे किसी से लिए अपने खर्चे पर यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य की उनकी सेवा करते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये और हमारे में कोई सगा संबंध है। ये नहीं है कि ये कोई दिखावे के लिए आ रहे हो। कौन करेगा इतना दिखावा? ये आप सबसे बड़ा जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, मानवीय कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई है। और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि आपके साथ आज मैं आपके खुद के जो अनुभव हैं वो सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारत माँ की सेवा, गरीब की सेवा, विवेकानंद कहते थे ये भगवान की पूजा है। सेवा नहीं, ये भगवान की पूजा है। और अब हम सब इसको एक भगवान की पूजा समझकर जीवन भर हम मेडिकल क्षेत्र से करें या पैसे से करें या समय से करें, लेकिन आओ हम भारत माँ की किसी न किसी रूप में सेवा करें और जीवन भर करें, अपनी पूजा समझकर करें। बोलो भारत माता की। I am thankful to all of you so that you have visited the place and try to understand this local solution. By and large, in our country, because I am involved in the community services last 30 years, I have found the basic problems in whole over India in the rural life is same. And this basic problem is because of the exploitation mentality of a group of people. And this exploitation mentality may be coming out of the effect, direct and indirect effect of the globalization. Now the rural people, everybody will unanimously believe they are so much deprived, not only from health care but from education and from the basic amenities. We are concerned about health care or ill health of the rural people. Now these are basically due to lack of sanitation. They do not know what are the hygienic habits. Then food deficiency. These are the main culprits making our nation sick. Our majority people are sick. And just before that, Zhou Enlai and Nehru had a friendship hug. But even after that, they came and they attacked and they came forward. So immediately after Chinese aggression, why I am mentioning? Because I heard Srivastava sir telling that we are students, and at that time Chief Minister has developed the Chalia. Then from the Students' Union, we approached him, we want to go to Arunachal. Please help us. He was very glad. He gave us money, and we had gone to Arunachal, different interior places. I was a medical student at that time. I could not treat Nepal. I went to Pasighat and also to Zero. And we had some doctors with us, some teachers. We could treat some of the patients, but most of the patients we vaccinated for various diseases. And besides that, we had given some songs and dances program, and that kept us very much liked by these people. The Arunachalis actually, after they were displaced, they came here to Guwahati, and there were many camps, and we served them here in the thing. I think it's a fact that we feel little isolated, and most of the northeastern people are Mongoloid, unlike Aryan or Dravidian Indians, so-called Indians. So when the Mongolian people sometimes go to some parts, I have heard, I think Srivastava said that you are Chinese. So I think that gives lot of, not hatred I should say, but they feel I am an Indian, but in India itself I am not considered as an Indian. So I shall request all these young people who have visited them, who have met them, to please remember this and pass on the message to your place, that this should be welcomed as an Indians. And also I have got a few suggestions to Seva International, also to Sarkar, that once you have come here, that's an excellent thing, but I think we should make also some of them to visit some of the parts of the country. And you should keep them in their houses, in your houses, and that will give better understanding.
Because I am in Rotary, there is a program, Rotary Youth Exchange Program. I also like to extend my gratitude and cordial thanks to all the pharmaceuticals companies who have donated the medicines, without which it is not possible to make the Dharmantri Seva Yatra successful. I would also like to thank the members of and office bearers of the Seva Bharati Purvanchal National Medical Organization, Seva International. And lastly, I would like to thank all who have helped us in a different way. Thank you. Vande